मैं आपको एक परमेश्वर के दास हैं, मैं उनकी गवाही आपको बताता हूँ। केनेथ हेगिन, A man of God, Kenneth Hagin. I want to share his जब वो story. 17 साल के थे उनके दिल में बहुत बड़ा छेद था और वो मरे और मर के उनका जो आत्मा है वो नरक की तरफ जा रहा है। When he was 17 years old, he had a big hole in his heart. He died and his spirit was descending into और उनकी hell. मम्मी उनके बगल में प्रार्थना करी थी घुटने टेक And his mom was praying on her knees next to him. और फिर वो देखते हैं कि उनकी आत्मा वापस नरक से कोई खींच के वापस ले आया, फिर वो अपने शरीर में आए And और then उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। then he saw someone pulled his spirit back from hell. He came back into his body and he received the Lord Jesus. 17 साल तक वो क्रिश्चियन थे। Till 17 years he was a Christian. उस दिन फिर उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। But that day he received the Lord. नाम केनेथ था, क्रिश्चियन नाम था। Name was Kenneth, a Christian name. उनको लगा मैं तो प्रभु में हूँ। He thought I belong to the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Jesus said, until you are born again, you cannot enter the kingdom of heaven. So खैर anyway, तो मार्क 11:24 उनको मिला So he found Mark 11:24. और उनके द्वारा उन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया। And through that he received his healing. अब वो चंगे हो गए। Now he was healed. और एक दिन वो अपने कमरे में बैठे थे One day he was sitting in his और room उनको एक आवाज अपने कानों में गूंजी उनके, and he heard a voice in his ears. और वो जेम्स 4:14 बोला उस आवाज ने। क्या बोला? अब हमें लगता है कि अगर कोई आयत मेरे कान में बोले तो ये तो परमेश्वर ही बोलेगा। And that voice said, James 4:14, Yakub 4:14, and we think if any voice will speak a word in our ears, that must be God. इसीलिए ध्यान से बाइबल पढ़ो। This is why read the Bible carefully. शैतान जब यीशु मसीह के पास आया तो बाइबल की आयत लेकर आया। When the devil came to Jesus, he brought the verses of the Bible. शैतान ने कुछ आयतें लेकर कुछ मसीहों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है क्योंकि उन्हें सुसमाचार का प्रकाशन नहीं है। Devil has used some verses and corrupted the brains of some Can you believers put James 4:14? because they have no revelation of God's word. और इसमें लिखा था कि हम नहीं जानते कल क्या होगा, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती और फिर लोप हो जाएगी। And it says, whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. फिर उसके बाद उस आवाज ने इब्रानी 9:27 बोला कि हर किसी के लिए नियुक्त किया गया है पैदा होना और मरना, और आज तेरा दिन है जब तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए। And then that voice again spoke, Hebrews 9:27, and says that it is ordained for every man to be born once and then die. Today is your day to die. और उन्हें लगा ये परमेश्वर है जो मुझसे बात करता है। उन्होंने कहा प्रभु मैं तैयार हूँ, ले जा मुझे। And he thought it is God speaking to him. So he said, Lord, I'm ready, take me. और जब वो ऐसा कह रहे थे, While he was just saying this, अंदर से उनके एक धीमी सी आवाज, from within him a still small voice और उस आवाज ने कहा whispered to him, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। I will satisfy you with a long life and show you my salvation. सो अब क्या हो रहा है? दो आवाजें आ रही हैं उनको। Now there are two voices that he's hearing. One, Satan is messing him up पहला with scriptures. जो शैतान वचन का इस्तेमाल करके उनको परेशान कर रहा है. इसीलिए बाइबल में लिखा है letters produces death. अगर केवल आयत ले लोगे और उसके अंदर उस आत्मा को नहीं समझोगे तो उसी आयत को लेकर शैतान मृत्यु लाने की कोशिश करेगा। Bible says जो लिखित वचन है वो मारता है. If you just take the letters but don't take the spirit behind it, the devil will use those letters to kill you. फिर से उस आवाज ने वही बोला, तेरा जीवन है ही क्या, आज तुझे तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। Again that voice spoke to him and said, what is your life? Today your soul will be taken from you. फिर धीमी आवाज अंदर से But again the still small उठ voice के आई, whispered, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। I will satisfy you with a long life and show you my salvation. फिर तीसरी बारी आवाज आई, मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? Then the third time he heard उन्होंने the बाइबल voice, में नहीं पढ़ा था ये, and he said, Lord, what is this? और उनका आवाज आई भजन संहिता 91 पढ़, And he heard to read Psalm 91. और उन्होंने भजन संहिता 91 पढ़ा। When he read Psalm 91, जब उन्होंने भजन संहिता 91 पढ़ा तो फिर से आवाज आई बाहर से, ये यहूदियों के लिए लिखा था, तेरे लिए नहीं लिखा। he heard a voice from outside, this was written for the Jews, this is not for you.
आपको परमेश्वर की विल, आज लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में किसी प्रचारक को सुना, उसने जो बोला नहीं है, गरीबी आपके लिए, कंगाली आपके लिए, वो मान लिया। अरे खुद वचन खुद तो पढ़ो, ढूंढो तो सही, देखो तो सही परमेश्वर ने कितनी प्रतिज्ञाएं आपके लिए करी हैं। Today what people do is they hear some random preacher on YouTube and that preacher is saying sickness is for you, poverty is for you, and they believe that. At least read the Bible, see what the word says for you. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा फिर से वो आवाज है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। Again that voice said, I will satisfy you with a long life. और फिर आवाज आई, आज तू मर जाएगा। And then he heard that voice that you will die today. अब मैं आपको वो पढ़ के बता रहा हूँ जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा। Now okay? I'm reading out to Are you you what ready? he has written in his book. And he stood up and declared out loud, और उन्होंने उठकर जोर से घोषणा की, Devil, शैतान, I am not going to die today. मैं आज नहीं I मरूंगा, am not going to die tomorrow. मैं कल नहीं मरूंगा, I am not going to die next week. मैं अगले हफ्ते नहीं I am मरूंगा, not going to die next year. अगले साल I नहीं am not going to मरूंगा, die in 5 years. 5 साल बाद I भी am नहीं not going to मरूंगा, die in 10 years. 10 साल I बाद am भी not नहीं going to die मरूंगा, in 20 years. 20 साल I बाद am नहीं not going to मरूंगा, die in 30, 40 or 50 years. 30, 40, 50 साल बाद I नहीं मरूंगा, will be satisfied with a long life. मैं दीर्घ आयु से संतुष्ट किया जाऊंगा। And और it came to pass, this man of God, ऐसा हुआ कि ये परमेश्वर के जन, whom devil would have killed at 17, lived a good old age and destroyed the kingdom of darkness. ये जवान व्यक्ति जो 17 वर्ष के थे, जब शैतान को मारना चाहता था, उन्होंने एक अच्छी भली बूढ़ी उम्र का जीवन जिया और शैतान के राज्य को नाश किया। आज ये वचन जो बीज की तरह आपके अंदर जा रहा है ना, ये दो धारी तलवार की तरह आपके मुंह से निकलेगा और हर एक मृत्यु का असाइनमेंट जो आपके परिवार के विरोध में शैतान ने रखा है, वो असाइनमेंट आज नाश किया जाता है यीशु के नाम में। Today this seed will go into your heart and will come out like a two-edged sword out of your mouth. Every assignment of death the devil has prepared against you is being destroyed today in Jesus' name. Amen. Let me declare this over you. मैं ये घोषणा You are करता not हूँ, going to die today. आप You आज are not नहीं dying मरोगे, tomorrow. आप You कल are नहीं not मरोगे, dying this year. इस You साल are नहीं not मरोगे, dying next year. अगले You are साल not नहीं dying in मरोगे, 10 years. 10 You are साल not में नहीं dying in मरोगे, 20 years. 20 You are साल not में dying नहीं in 30 मरोगे, years. 30 You are साल में not नहीं dying in मरोगे, 50 years. 50 साल में You नहीं मरोगे, shall live a long life in Jesus' name. आप एक लंबी आयु जियोगे यीशु के नाम में। Hallelujah. Amen. और एज का नहीं है, प्रभु कहता है I'll satisfy। जब satisfy हो जाए, 80 जी लिया आपका, प्रभु अब मुझे घर आना है, तो बर्थडे लगाना, अपना केक, उसमें कैंडल लगाना, कहना प्रभु तेरा धन्यवाद, और शैतान को कहना आया मजा। It's not about age. When you are satisfied with your age, so celebrate your 80th birthday and tell the devil, did you enjoy that? Now some people will say that was his testimony, why should we follow him? कुछ लोग कहेंगे ये तो उनकी गवाही है, हम क्यों माने? Because Bible tells us to follow such people. क्योंकि बाइबल हमें कहती है ऐसे लोगों का अनुकरण करो। Put Hebrews 6:12. Hebrews 6:12. इब्रानी 6:12। Okay. That you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। मसीह की देह में एक चीज जो बढ़िया है, आप अच्छा है, मगर एक और बदलाव आना जरूरी है। One thing that is good in the body of Christ, but one more change is needed. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हर बार क्या कहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, pray for me, pray for me. Every time we say, oh मेरे लिए प्रार्थना कर दो। When मेरे you लिए see a प्रार्थना man of God करो। जब आप परमेश्वर के किसी जन who को has देखते हो, possessed a promise, जिसने किसी वायदे पे कब्जा किया है, rather than saying pray for me, you should say teach me. ये कहने की जगह कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ये कहो मुझे सिखाओ। Teach me, how were you able to possess this promise? Teach me, because I want to imitate your example. मुझे सिखाओ कैसे आपने इस वायदे पे कब्जा किया, क्योंकि मैं आपके उस उदाहरण की नकल करना चाहता हूँ।
क्यों बाइबल आपको कह रही है कि उनकी नकल करो जिन्होंने पेशेंस के साथ और विश्वास से प्रतिज्ञा को पकड़ लिया? क्यों? क्योंकि जब आप उनका अनुकरण करोगे तो आप भी प्रतिज्ञा को पकड़ लोगे यीशु के नाम में। Why is the Bible telling you to imitate those who have by faith and patience obtained the promise? Because if you imitate them, you will also obtain the promise. What do we say? Pray for me, pastor. हम कहते हैं प्रार्थना कर दो। Pray for me, मैं बहुत कर्जों में हूँ। ओ मेरे लिए प्रार्थना तो मैं कहूँगा मैं भी तो था, तो वही करो जो मैंने करा। I'll tell them I was also under debts. Do what I did. वही करो। Do that. You'll have the same result. आपको भी वही परिणाम मिलेगा। Amen. You need to catch hold of the promises of God. आपको परमेश्वर के वादों को थाम लेना सीखना है। तो आपको आज जानना है So you have ये to- जो उद्धार हमें मिला है ये केवल स्वर्ग जाना नहीं है भैया। So you have to know today the salvation you have received is not just going to heaven. ये ऐसा ही जैसे वो थे कि टिकट बैठ गए जहाज में, अब जाना है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका तो पहुंचा देगा जहाज, मगर जो जर्नी है ना वो बिल्कुल खराब जर्नी है। ऐसा नहीं कह रहा परमेश्वर कि भैया स्वर्ग तो पहुंचोगे मगर यहाँ पे बिल्कुल खत्म जीवन जीना। So now they have bought the ticket to go to South Africa. So they will reach the destiny, South Africa, but all the journey will be so terrible. This is not what God is saying. This is not what God wants, that you will go to heaven. The journey, the life here will be terrible. The Bible says, Come on. what does it say? It says many things, but right now what I'm saying is the path of the righteous shines brighter and brighter and brighter. That means your tomorrow is going to be better than your yesterday in Jesus name. बाइबल कहती है धर्मी जन का मार्ग प्रकाशमान और प्रकाशमान और प्रकाशमान होता चला जाता है। इसका मतलब आपका कल आपके आज के दिन से बेहतर होगा यीशु के नाम में। Amen. That means now you are not going down, you shall go up, up and up in Jesus name. इसका मतलब अब आप नीचे नहीं जा रहे हो, आप जीवन में ऊंचा 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 उठते जाओगे यीशु के नाम में। Hallelujah. I declare no arrow of the enemy shall hit you and your family in Jesus name. मैं घोषणा करता हूँ दुश्मन का एक भी तीर आपके और आपके परिवार को छूने भी नहीं पाएगा यीशु के नाम में। As your days are, so shall your strength be. जैसे आपके दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका बल भी बढ़ता चला जाएगा यीशु के नाम में। Amen. लोग क्या कहते हैं, अब उम्र बढ़ रही है तो बल घटेगा। People say now age is increasing so strength will go down. ये लोग कह रहे हैं। This is what people वचन say. क्या कह रहे हैं? What is the word say? जैसे तेरी उम्र बढ़ रही है तेरा बल भी बढ़ता जाएगा। As your days are increasing, your strength will keep on increasing as That well. means tomorrow you're gonna be more stronger than yesterday in Jesus name. इसका मतलब कल आप ज्यादा बलशाली हो गया पिछले दिन से। Hallelujah. We are in a different kingdom. हम एक अलग राज्य में हैं, We are in a different economy. एक अलग इकोनॉमी में हैं। Are you getting what I'm saying? This is an upside down kingdom. ये ऊपर से चलने वाला उल्टा राज्य है। Hallelujah. अगर यहोवा का वचन में उसकी बाट जोते रहोगे तो उकाबों की नाई आपकी जवानी वो। If you will keep on waiting on the Lord through His word, He will keep on renewing your youth like the eagles. Amen. कल मैं 40 का हो जाऊंगा, I'll be 40 tomorrow. मगर जब 80 का होऊंगा तब और ज्यादा स्ट्रांग होऊंगा। But when I'll be 80, I'll be more strong. And so shall it be with you and your family in Jesus name. और आपके परिवार के साथ भी ऐसा ही होगा यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. परमेश्वर मूसा का रिश्तेदार थोड़ा है। God is not Moses' relative. मूसा तो पुराने नियम में नौकर था, हम तो बेटे और बेटियां हैं। Moses was a servant in the Old Testament. We are sons and daughters of God. हालेलुया। और बाइबल कहती है 120 का था, उसकी आंखें डिम नहीं थी। Bible says he was 120 years old. His eyes were not dim. और पहाड़ पे चढ़ के गए भाई साहब।
He climbed the mountain. लोग क्या कहते हैं, अगर आप बीमार नहीं होगे तो फिर मरेगा कैसे कोई? मूसा कैसे मरा? बीमार था। So people say, if someone is not sick, how will they die? Was Moses sick? अरे उम्र पूरी करो यहाँ पे, बढ़िया Fulfill your life here completely, your days. लिव अ विक्टोरियस लाइफ हियर, एक जयवंत जिंदगी और जियो फिर यहाँ अनंत पे. में तो विक्ट्री में आप प्रवेश कर ही रहे हो। And then in eternity you are entering into victory anyways. हालेलुया। चाहिए प्लीज। मैं आपको एक बात बता दूं, गॉड विल नेवर फोर्स हिज ब्लेसिंग अपॉन एनीवन। परमेश्वर अपनी आशीष किसी पे जबरदस्ती नहीं थोपेगा, ही विल नेवर, कभी नहीं करेगा ऐसा। इवन दो गॉड्स प्रॉमिसेस आर गॉड्स विल, हालांकि परमेश्वर के वायदे उसकी इच्छा हैं। एक प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? अगर एक व्यक्ति प्रतिज्ञा कर रहा है, इसका मतलब उसकी प्रतिज्ञा प्रकट करती है कि उसकी इच्छा क्या है। What does a promise mean? A promise shows what is the promiser wanting to do. लोग कहते हैं अच्छा ये क्या सिखा रहे हैं, दीर्घायु जियोगे। Oh, this, what are they teaching? Long life. बाइबल सिखा रही है, मैं थोड़ा ना सिखा रहा हूँ। The Bible teaches that, not me. There are more than 100 promises। कितनी? अगर कोई आपको चिट्ठी लिखी और उसमें 100 बारी एक बात लिखे, इसका मतलब वो चाहता है कि समझ जाओ भाई मैं क्या कह रहा हूँ। If someone writes a letter to you and writes one thing 100 times, then you should understand what they want for you. God wrote in His Word 100 times that He wants to bless you with a long life. परमेश्वर ने अपने वचन में 100 से ज्यादा बार लिखा है कि वो आपको एक लंबी जिंदगी से ब्लेस करना चाहता है। Okay, and hear this. Long life is not achieved, it's received by faith. एक लंबी जिंदगी हासिल नहीं की जाती, ग्रहण की जाती है विश्वास से। Amen. यानी परमेश्वर नहीं कह रहा कि हिमालय में चढ़ के आपको एक जड़ी बूटी लानी है, God is not saying you have to climb up the और जब अमावस्या की रात होती है तब गिलहरी की पूंछ के साथ उस जड़ी बूटी को मिलाना है, और तब जब आप सुबह 3 बजे उठकर दूध के साथ उसको पियोगे तब आपको दीर्घायु मिलेगी। नहीं 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 नहीं। Do you want to interpret? इतना स्किल नहीं है सर। Okay. Longevity is a blessing. दीर्घ आयु एक आशीष है। Longevity is a covenantal inheritance. दीर्घ आयु एक वाचा के द्वारा पाई जाने वाली विरासत है। God calls death His enemy. परमेश्वर मृत्यु को अपना दुश्मन कहते हैं। हाँ? God calls death His enemy. परमेश्वर मृत्यु को अपना दुश्मन कहते हैं। You have to hate death. हमें मृत्यु से नफरत करना सीखना है। God hates death. परमेश्वर मृत्यु से नफरत That's करता why है। He died to abolish death. इसीलिए वो मरा कि वो मृत्यु को नाश कर पाए। अभी आत्मिक मृत्यु से हम लोग रिडीम हो चुके हैं। समय आ रहा है, बाइबल कहती है जब अविनाशी शरीर नाशवान शरीर को निगल लेगा तब हम लोग शारीरिक मृत्यु से भी पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। We have been redeemed from spiritual death, but the time is coming when the imperishable will swallow that which is perishable, that our bodies will be redeemed from death. मगर तब तक, But till जब then, तक वो ना हो, समय से पहले नहीं जाना। until that happens, don't go before your time. पूरे करो दिन। Fulfill your एक days. ही जिंदगी है भाई, We have one life. उस काम को तो पूरा करो जिसके लिए भेजा गया है। Fulfill the work for which you have been sent. नीले आसमां के पार जाएंगे, और चले गए, और यीशु ने कहा क्या किया तूने? कुछ नहीं, हमें नीले आसमां के पार आना था। So you were waiting to go beyond the blue skies and you meet Jesus and he says, what did you do? You said, nothing, I just wanted to get beyond the blue skies. अरे वहां तो जाना ही है, पर काम करके जाना। लाखों भाई बहनों को लेकर जाएंगे अपने साथ नीले आसमां के पार। Yes, we will go there, but do a lot of work here. We have to take lakhs of brothers and sisters with us. Amen.